Today, we celebrate the centenary of a voice that defined the golden era of Indian music, Mohammed Rafi. The king of melody. His timeless songs continue to inspire generations, transcending boundaries of language and time. This special session will explore his unmatched contributions to Indian music, the emotional depth of his singing, and the enduring legacy he left behind. Let's dive into the magic of Rafi Saab and the melodies that continue to live in our hearts. It's time now to welcome our moderator and the panelists. An award-winning poet and scholar whose work on music and cinema includes the National Film Award-winning Lata Surghata. Let's welcome our moderator for this session, Mr. Yatinder Mishra. And now, a playback and devotional music legend whose contributions have earned her a Padma Shri and the admiration of millions. Please welcome Dr. Anuradha Podwal. Up next, a visionary filmmaker who redefined Hindi cinema with iconic films like Karz and Taal. We are honored to have Mr. Subhash Ghai with us. And next, preserving the legacy of the legendary Mohammed Rafi through heartfelt performances and the Mohammed Rafi Academy. Let's hear it for Mr. Shahid Rafi. Finally, a Padma Shri awardee and one of India's most celebrated playback singers with over 4,000 songs across multiple languages. Please welcome Mr. Sonu Nigam. Let us now take a look at the centenary special video made by IFFI in the honor of the King of Melody, Shri Mohammed Rafi. आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज में। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। वो अपनी याद दिलाने को एक इश्क की दुनिया छोड़ गए। This line from Mohammed Rafi's first song in independent India holds a secret about the legacy he would leave behind. 7,000 songs spanning from British India to independent India. My dad was born in Amritsar in a village called Kotla Sultan Singh. जहाँ पे वो रहते थे, जो मोहल्ले में रहते थे, वहाँ पे एक फकीर हमेशा उनके मोहल्ले से जाता था। तो उसकी आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगती थी, तो मैं वो जहाँ चलता जा रहा था, मैं उसके पीछे पीछे चलता, मैं भी साथ में चलता था। कौन है जो सपनों में आया? Young Fico, singing along with the fakir, imitating him, was pulled into the enchanting world of music. At just 13, Rafi had his first break, singing as a backup for the legendary KL Sehgal during a performance in Lahore. एक इंसान बैठे थे हमारे ताए के बाजू में और उन्होंने कहा ये लड़का बहुत अच्छा गाता है, इसका नाम क्या है? बोला कि ये मेरा छोटा भाई है, नाम इसका रफ़ी है। तो उन्होंने अपना कार्ड दिया और उन्होंने कहा कि अपने लड़के को मेरे पास लेकर आना, मैं श्याम सुंदर हूँ। सज रही गली मेरी माँ। People like Rafi Sahab are not created or made singers, they are born greats. From Lahore to Mumbai,
Rafi's voice transcended boundaries and stood the test of time. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. In 1944, Rafi moved to Mumbai. An old acquaintance from Punjab, Shyam Sundar, gave Mohammed Rafi his first Hindi song for the film Gaon Ki Kori. But it was his meeting with the legendary Naushad Ali that marked a new chapter in Rafi's career, entrusting him with all the songs for Baiju Bawra, an album that became an instant hit, making Rafi visible to the world. S.D. Burman and Rafi created the iconic soundtracks for films like Pyasa, Kagaz Ke Phool, Kala Pani, Guide and Abhiman. Songs that would stay with us for generations. तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए. With a smile that never faded, Rafi took a flight in good times. Rafi Sahab was a very godly singer. He sang so many genres, you can't just pick one. Mohammed Rafi, in 1947, made his acting debut in the film Jugnu. It was in this very year that Rafi made the pivotal decision to leave Lahore behind. With a smile, embracing the future, he sang for Jugnu. He was a legend who brought together generations, languages, and cultures through his music. A legacy that will live on in every note, in every song, and in every memory of his voice. May I now request Srimati Vrunda Manohar Desai, Joint Secretary Films, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, to please join us on stage and felicitate our guests with the following. The bilingual brochure curated by Shri Yatindra Mishra. The Sari Gama Karwa featuring the 4 legends. The Iffy Memento. May I also now request Srimati Shilpa Rao, Director Films, Ministry of I&B, Government of India, to please come on stage to present the My Stamp issued by the Department of Posts to celebrate the birth centenary of Shri Mohammed Rafi and 3 other legends, Shri Raj Kapoor, Shri A.N.R. and Shri Tapan Singha.
I also call upon Ms. Firdaus Rafi, ma'am, to join the dignitaries on stage for a photograph. And not to forget our dear musicians. Ma'am, I request ma'am to please felicitate our dear musicians with the IFFI memento. Thank you so much, ma'am, for joining us with the felicitation and the photograph. I now call upon Mr. Yatindra Mishra with a gracious request to commence the discussion. बहुत धन्यवाद इफ़ी, मिनिस्ट्री ऑफ INV, श्री मोहम्मद रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी मनाने के लिए श्री शाहिद रफ़ी साहब का स्वागत है, सुभाष घई साहब का, अनुराधा पौडवाल जी और सोनू निगम। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधूंगा, आपको सब पता है रफ़ी साहब के बारे में, आपको सब पता है इन चारों लोगों के बारे में। नौशाद साहब की एक नज़्म की 4 लाइनें जो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को याद करते समय लिखी थी। अल्लाह अल्लाह रफ़ी की आवाज़, रूहे महमूदो जाने बज़ में अयाज़, उसकी हर तान उसकी हर लय पर बजने लगते थे खुद दिलों के साज। एक बहुत सुंदर सी नज़्म है, आप गूगल सर्च करेंगे तो भी शायद मिल जाए, नहीं तो मैं आपको दे दूंगा। नौशाद साहब ने अपने समय के अपने तमाम सारे बड़े फनकारों पर बहुत सुंदर सुंदर नज़में लिखी, और ये कितनी सुंदर बात है कि रफ़ी साहब को तराशने का काम भी नौशाद ने किया। थोड़ा क्रेडिट हम लोग ले सकते हैं कि हम उसी धरती से आते हैं, अवध की, जहाँ से नौशाद साहब मुंबई गए। और मैं सबका स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले शाहिद साहब से सवाल करूँगा, बीच बीच में मैं कुछ कुछ बताता रहूँगा आपको। आपके वालिद नहीं चाहते थे कि उनके कोई बच्चे मौसीकी में आएँ, और वो बहुत एक रेस्ट्रिक्शन था कि इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आना है। आप आ ही गए और आप गाने भी लगे। तो क्या अभी ये आपको उनके जाने के बाद और जब आपने ये सब शुरू किया, अफसोस होता है कि काश वालिद से सीखा होता या प्रॉपर प्लेबैक सिंगिंग में आना चाहिए था? सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीबॉडी, नमस्कार, आदाब। मैं पहले सवाल का आपको जवाब देता हूँ कि रफ़ी साहब और हमारी अम्मा नहीं चाहते थे कि कोई भी औलाद उनकी इस इंडस्ट्री में आए। उसकी वजह ये थी कि अब्बा ये चाहते थे कि अगर कोई भी मेरी औलाद आए तो या तो मेरे बराबर आए या तो मेरे से बढ़कर आए। वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी औलाद मेरे से नीचे आए। तो दिस वाज हिज थॉट। तो खैर बाप तो बाप होता है। तो एंड जब भी उन्होंने ये महसूस किया कि कोई भी बच्चा कोशिश कर रहा है या अपना इंटरेस्ट ले रहा है इस इंडस्ट्री में आने की, तो सीधा बचपने में ही हम लोग को लंदन भेज देते थे, वहीं पे पढ़ो वहीं पे रहो। तो आधी ज़िंदगी हमारी लंदन में गुजर गई है। अब्बा के इंतकाल के टाइम पे मैं आ गया था यहाँ पे। मॉम वाज ऑल अलोन, अकेली थी वो। तो मैं रह गया यहाँ पे, बाकी सब भाई सब मेरे लंदन में हैं। तो मुझे बाद में लोग कहते थे, बच्चे ऐसे ही अपना महफिल में बैठते थे तो बोले कि अपने यार इतने फेमस फादर हैं। उस वक्त तो हम लोग यकीन करना कि डैड के टाइम पे हमने कभी ये नहीं सोचे थे कि हमारा बाप इतना बड़ा है।
आप यकीन करिए व्हेन ही वाज अलाइव, कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि वो, क्योंकि हमने उनको वो नज़र से देखे नहीं थे, हमने उनको एक नज़र अपने एक पिता की नज़र से देखे थे, एक वालिद की नज़र से देखे थे, एक बाप की नज़र से देखे थे। वी नेवर थॉट कि हमारा अपना बाप बहुत बड़ा सिंगर है या कुछ ऐसा। वी रियलाइज दैट, मतलब हमारे को वो एहसास हुआ जब वो चले गए। उसके बाद ऐसा महसूस हुआ और लोगों ने जिस तरीके से मोहब्बत जाहिर किया हमारे सामने रफ़ी साहब के लिए, तब हमने महसूस किया कि यार हमारे अब्बा इतने बड़े थे। बिलीव मी, आई मीन दिस वाज आवर रिएक्शन, नॉट ओनली माइन, मेरे घर वालों में सब, मेरे भाई बहन ये बोलते थे अरे अब्बा इतने बड़े थे। मतलब इतना कभी होता नहीं था, बिकॉज वी जस्ट थॉट, यही सोचते थे कि वो हमारे पिता हैं, एंड वी रिस्पेक्टेड हिम एज अ फादर, नॉट एज अ ग्रेट सिंगर। तो मे बी वो तालीम और वो जो माँ बाप ने हमको जो सिखाए, वो शायद अपना दैट केम इन टू अस, दैट वाज इट। आपकी मॉडेस्टी है और मैं क्या बोलूं, और एक सुरीले पिता की विरासत सुरीली ही होगी ऐसा मुझे लगता है, और आपको हम लोगों ने सुना है खूब। रफ़ी साहब के लिए आप तमाम सारे उनके कदरदान बैठे होंगे, ये कभी आप ध्यान दें कि लता मंगेशकर, रफ़ी और मुकेश को भी पार्श्व गायन में कोरस में गाना पड़ा होगा। शायद कभी अनुराधा जी को और सोनू निगम जी को ये नहीं करना पड़ा हो, फिल्म इंडस्ट्री जब जवान हुई और अपने उरूज पे आई। लेकिन शुरुआती दौर में पहले आप फिल्म के लिए नौशाद साहब ने जब एक ट्रूप सॉन्ग बनाया जिसमें जूते पटक करके गाना था, हिंदुस्तान के हम हैं हिंदुस्तान हमारा, तो रफ़ी साहब उसमें एक कोरस वॉइस भी थे और अपने बूट पटक के गाए हैं। आपको यूट्यूब में वो गाना मिल जाएगा। एक शाहजहां फिल्म में उन्होंने कोरस में गाया मेरे सपनों की रानी रूही रूही, और बाद में फिर अनमोल घड़ी तक आते आते तेरा खिलौना टूटा बालक से वो आगे आते हैं, और जब 49 में दुलारी आती है, सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, तो रफ़ी साहब उस मेयार पे पहुंचते हैं जहां पहुंचना लोगों के बस का नहीं है। मैं सोनू जी से पूछना चाहूँगा, सहगल साहब का हारमोनियम किसको मिले, इसके लिए बड़ी अफरा तफरी थी कि सहगल साहब अपनी विरासत किसको देने वाले हैं। रफ़ी साहब भी इस चक्कर में, लता जी भी इस चक्कर में, मुकेश भी, और एक बड़ी सुंदर कहानी है, बाद में वो हिस्से में आया मुकेश के। क्या रफ़ी साहब की कोई ऐसी चीज़, क्या रफ़ी साहब की आवाज़ का वो फ़न आप किस तरह से अपने गाने में टटोलते हैं, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी बारीकी है, वो कौन सी मुर्की और मिजाज और पलटे और तान गमक का कौन सा कण है जो हमेशा से सोनू निगम अपने म्यूज़िक में इनोवेट करते रहे। क्योंकि अभी आपसे बात करने के पहले मैं बहुत देर तक सुभाष जी के साथ बैठा था, तो उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बातें आपके लिए बताई कि कैसे आप अपने एक्सप्रेशंस को इम्प्रोवाइज़ करते हैं, और आपके सारे कदरदान यहाँ हैं। इन द लाइट ऑफ मोहम्मद रफ़ी, द सोनू निगम एज ए प्लेबैक सिंगर। सबसे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिनको मैंने अपना भगवान माना, जिनको मैंने अपना, मेरे पीर ही हैं वो, मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे लोग किसी को याद करते हैं, कुछ मानते हैं, कोई साईं बाबा को मानता है ना, मैं मोहम्मद रफ़ी बाबा को मानता हूँ। तो मैंने उनको वैसे ही प्यार किया, और मेरी जर्नी की शुरुआत अनुराधा जी ने देखी हुई है, और शी इज़ द विटनेस टू मेरा जब करियर शुरू हुआ था मुंबई में 1991 में, जब मैं आया था यहाँ पे, तो मैं पहले से ही, हमारे माता और पिता ने हमको रफ़ी साहब से ऐसे मिलवाया था जैसे कोई फरिश्ता है, न केवल गाने के बारे में, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। और जितना फिर मैं इंडस्ट्री में आया, मैंने उनके बारे में मेरे बड़ों से सुना जिन लोगों ने साथ में उनके काम कर रखा था, तब मुझे एहसास हुआ कि ये आदमी तो कुछ अलग ही विलक्षण थे और किसी ख़ास पर्पस से आए थे। इनके बारे में मैं इनसे कितना मुतासिर हुआ हूँ, कहाँ कहाँ, ये मेरे ख्याल से मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी सुनने वाले ने मेरे म्यूज़िक को सुना है वो जानता होगा कि मैंने अपने बड़ों से और ख़ास तौर से रफ़ी साहब से कितना इन्फ्लुएंस मैं हुआ हूँ, कितना मैंने उनसे सीखा है, कितना मैंने अपने संगीत में उसे अपनाया है।
एक बहुत बड़ा फ़र्क जो रफ़ी साहब लेकर आए गायकी में, क्योंकि ये मत भूलिए कि उस समय पार्श्व गायकी नई नई आई थी। हमारे पास तो रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे हैं, हम सुनने के लिए हमारे पास में कैसेट सीडीज़ थे, अब यूट्यूब में जो चाहे सुन लेते हम लोग। इन लोग के पास में रेफरेंस पॉइंट नहीं था, तो ये जो किया ये इनको आमद आई है कि कैसे फूल को फूल की तरह बोलना है, जोश को जोश की तरह बोलना है। देश का गाना गाना है तो देश की बात आनी चाहिए, और प्यार का गाना गाना है तो प्यार की बात आनी चाहिए। गज़ल गा रहे हैं तो गज़ल का ठहराव आना चाहिए। भजन गा रहे हैं तो लगना चाहिए कि हिंदू पंडित बैठ के भजन गा रहा है। और जब हमद और नाद गाएंगे या कव्वाली गाएंगे लगेगा पक्का मुसलमान ऐसे गा रहा है, अपने मौला के लिए, अपने अल्लाह के लिए गा रहा है। तो ये बंदे अलग ही थे। ये शायद क्योंकि ये इतने सच्चे थे अंदर से, ये कोई भी गाने को गाते थे तो ये उसमें मिल जाते थे। द सॉन्ग बिकेम द सिंगर, ऐसे हो जाता था। सो रफ़ी साहब ने गानों में अदायगी लाने का जो चलन था ये पहले सर्वप्रथम वही थे। उसके पहले लोग बहुत अच्छा गाते थे, बहुत ही प्यारा गाते थे। सहगल साहब को तो मैं बोलता हूँ द ग्रैंड फादर ऑफ प्लेबैक सिंगर्स। सब उनके ही, मतलब वो एक वृक्ष हैं और सब उनकी टहनियों की तरह निकले हैं। सब ने उनसे इंस्पायर होकर कुछ ना कुछ सीखा है। रफ़ी साहब फिर सब अपने अपने अलग बन गए। किशोर कुमार जी अलग बन गए, मुकेश जी अलग बन गए, रफ़ी साहब अलग बन गए। रफ़ी साहब ने जो रास्ता पकड़ा वो था गाने में अदायगी का। आपको पता चल जाता था, अगर आपको लैंग्वेज भी ना पता हो, उर्दू हिंदी नहीं पता हो, तो भी आपको पता होगा ये गाना सैड है, ये गाना खुशी है। यहाँ पे किसी की तारीफ हो रही होगी पक्का, कोई लड़की के बारे में कोई खास बात हो रही है, ये गाना शायद किसी बात से रो रहा है आदमी, क्या इसकी बेटी विदा हो रही है, क्या ये ऐसा हो रहा है क्या कुछ। तो ये अगर आपको शब्द ना पता हो, गाने वाले की गायकी से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये रफ़ी साहब ने किया सबसे पहले। बहुत सुंदर सोनू जी। मैं इसी क्रम में अनुराधा जी से चाहूँगा कि उन्होंने उनके साथ कुछ बहुत मशहूर डुएट गाए हैं, पायलिया चमकी और मेरी माथी की बिंदिया। एक को सिंगर की तरह, एक सपोर्ट, मतलब एक साथी पार्श्व गायक की तरह कैसे याद करती हैं, और श्रोताओं दर्शकों को ये भी बताएं कि एनालॉग पैटर्न का म्यूजिक होता था, सब साथ होता था, अब तो सब डिजिटल हो गया, ऑटो ट्यून हो गया उस दौर में, और आप लोग भी नए नए थे, तो वो क्या अनुभव हैं आपके? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरे लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है कि रफ़ी साहब के बारे में कुछ कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं इसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद समझती हूँ कि रफ़ी साहब के साथ मुझे तकरीबन 35 गाने गाने को मिले, और बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ हैं। सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि इतने हम्बल और इतने नॉन एज्यूमिंग, डाउन टू अर्थ शायद ही कोई होगा जैसे रफ़ी साहब थे। वो उन दिनों की बात है जब सब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी और एक ही कमरे में हम मिस डायरेक्टर रफ़ी साहब, मैं, हम बैठ के रिहर्सल करते थे। तो यकीन करिए कि रफ़ी साहब अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ तक उनकी आवाज़ नहीं आती थी। ही वॉज सो सॉफ्ट स्पोकन। और सुभाष जी, यू नो, हम लोग जब हमने कर्ज के लिए गाना रिकॉर्ड किया था तो उनका एक ख़ास अंदाज़ था कि किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर जब वो सिखाते थे तो वो ऐसे करके झुक करके गाना सीखते थे, विच इज़ अ वेरी वेरी रेयर थिंग, क्योंकि वो तो ही वॉज लाइक नंबर 1। तो इतने झुकाव से और इतने प्रेम से और इतने सॉफ्टली गाते थे। मैं बहुत नई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मुझे लगता था कि इतने धीरे से बात कर रहे, इतने धीरे से गा रहे माइक्रोफोन में, तो आवाज़ क्या आती होगी वहाँ पे। तो मैंने एक ऐसी रिकॉर्डिंग थी जहाँ मैं महबूब स्टूडियो में अंदर से जाके सुना, तो मुझे लगा कि पता नहीं एक शेर है कि एक बड़ा सा माउंटेन है जो उनकी आवाज़ थी। तो उनका जो थ्रो था, उनका जो उनकी एक स्पेशलिटी थी वो उनके थ्रो में थी। जिस तरह से वो आवाज़ फेंकते थे कि बहुत ज़्यादा वैसे स्ट्रेस नहीं करके जो डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट आता था।
दूसरी खासियत उनकी ये थी कि उनका कोई भी गाना उठा लो तो ये आप कह सकते कि ये गाना किस पे फिल्माया गया है। क्या बात है। मतलब उसमें कई बार होता है कि सिंगर जब गाते हैं तो सिंगर की पर्सनालिटी दिखती है। इनके गाने में पता चलता था कि जॉनी वॉकर गा रहे हैं, धर्मेंद्र जी का गाना है या तो फिर देवानंद जी का गाना है। अगर याहू होता था तो शम्मी कपूर का ही गाना था वो। तो दिस वाज मतलब ये बहुत ही उनकी खूबी थी। और तो उनके बारे में जितना बोलो कम है। आई थिंक मैक्सिमम गाने सुभाष जी के लिए मैं सुभाष जी तक आ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूँगा कि उनकी कुछ हरकत या आप अपने साथ का कोई उनका ड्यूएट 2 लाइन ही गुनगुना दें। सुभाष जी का ही गाना मैं कुछ लाइंस जो मैंने कर्ज के लिए गाए थे। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, आपने एक पूरा माहौल बना दिया। और मैं गौतम गोविंदा के गाने पे बाद में आऊँगा। मैं पहले दर्द दिल पे आता हूँ कि जब किशोर कुमार का एरा आ गया, जब ये हो गया कि अब सब तरफ किशोर कुमार हैं, और उस लास्ट फेज में क्योंकि वो नहीं रहे 81 में, रफ़ी साहब को जब आप कर्ज में लेके आए और दर्द दिल दर्द जिगर आपने गवाया और वो एक माइलस्टोन है। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आर.डी. बर्मन स्टाइल का म्यूजिक दे रहे हैं, बिल्कुल सब नया तोड़फोड़ हो रहा है। जब वो नहीं रहे, किन फिल्मों में आपने मोहम्मद रफ़ी को ढूंढा अपने लिए कि काश रफ़ी साहब होते? क्योंकि बाद में एक पूरी रेपर्टरी है, मेरी जंग, विधाता, हीरो, और बाद में तो बहुत सारी फिल्में हैं। आपको कब लगा कि एक बहुत बड़ा शाहकार हमारे बीच से उठ के चला गया और इसकी आवाज़ का रिप्लेसमेंट संभव नहीं है? आप सबको नमस्कार। मेरे जीवन में रफ़ी साहब का एक बहुत बड़ा अहम स्थान रहा है शुरू से। 3 चैप्टर में बताऊं, बचपन, जवानी और रवानी। क्या बात है। बचपन में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जब मैं छोटा था तो स्कूल में मैंने रफ़ी साहब का एक गाना गाया, तो बहुत तालियां मिली, कुछ ट्रॉफी मिल गई। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। जी, मैं अभी बहुत बेसुरा हो गया हूँ, माफ़ी चाहना, सब खत्म हो गया है। लेकिन वहाँ से मुझे संगीत का और गीत का और गायकों के लिए बहुत बड़ा एक आदर हुआ। और मैं फिल्में भी जब देखता था तो फिल्मों में जो म्यूज़िक होता था उसकी तरफ मेरा बहुत अक्सर ध्यान जाता था। फिर हम लोगों ने बड़े हुए तो इन सबको सुना, मुकेश जी को, मन्ना डे को, रफ़ी साहब को, लता जी को, और उनके साथ ही हम बड़े हुए। तो बहुत तमन्ना थी कि एक दिन रफ़ी साहब से मुलाकात होगी। तो मैं इंडस्ट्री में आया, FTI में पढ़ के फिल्में बनाई, कालीचरण, विश्वनाथ, कर्ज, विधाता, राम लखन, कर्मा, बहुत सी। लेकिन मैं उनको उन दौर में मिला जिस वक़्त शायद उनका जाना लिखा हुआ था और मेरा आना लिखा हुआ था।
और मैं इतना खुश था कर्ज में जिस वक्त लक्ष्मीकांत जी ने ये गीत बनाया दर्द दिल दर्द जिगर, कि आज तो बड़ी अच्छी मुलाकात होगी उनसे। और मैं स्टूडियो में नॉर्मली रिकॉर्डिंग में सिंगर से पहले पहुंच जाता हूँ, आपसे पहले। तो मेरी गुफ्तगू चलती रहती है म्यूजिक कंपोजर के साथ, ये कैसा होगा कैसे नहीं होगा। तो गाना तो हमारा बन गया था, ये गज़ल थी और गज़ल को हमने पॉप रिदम में डाला था, क्योंकि हमें वो फिल्म जो थी थोड़ी पॉप सिंगर की कहानी थी। लेकिन फॉर्मेट उसका गज़ल का ही है, अगर आप दर्द दिल दे दें। तो हमने रफ़ी साहब को मुलाकात हुई मेरी, मैंने उनके पाँव छुए तो कहने के नहीं आपने बाप की पिक्चरें देखी हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं आप। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगा जो यहाँ लिखा है ना, आसमान से आया फरिश्ता, वैसा ही मुझे लगा था। इतने हम्बल, इतने खुदा के बंदे कि मैं इंडस्ट्री को जानता था कि हमारे सबके अपने अपने कद होते हैं, किसी का बड़ा किसी का छोटा, लेकिन जो हम्बलनेस थी उनकी, जो ऐसा इन्होंने कहा, वो एक अपने आप में एक मिसाल थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्लेबैक सिंगर है उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। सिंगर और प्लेबैक सिंगर में थोड़ा फर्क है। सिंगर जो होता है वो खुल के गाता है और अपने मन से गाता है और अपनी मर्जी से गाता है। कहीं भी बह सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी ठहर सकता है, कहीं भी रुक सकता है। लेकिन जो प्लेबैक सिंगर है उसको सिनेमा के लिए गाना पड़ता है, वो प्लेबैक सिंगर है। उसको मीटर में गाना पड़ता है, उसको ऐसा गाना पड़ता है कि जो गीत लिखा है ये डायलॉग है। जो गीत लिखा है उसके डीपर मीनिंग को समझना पड़ता है, गाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके डीपर मीनिंग को समझ के उसको फील करके तब जाके गाना पड़ता है, ताकि जब वो स्क्रीन पे आए गाना तो ये लगे कि ये व्यथा और ये इमोशन इसी एक्टर की है, जो कैरेक्टर की है, जो गा रहा है। और ये एक बहुत कठिन काम है कि स्टूडियो में रिकॉर्ड किया हुआ गाना फिर पर्दे पे लेके आना और फिर उस एक्टर का गाना, ये सारा जो यात्रा है एक अपने आप में बड़ी नाजुक यात्रा है। और उसमें सबसे पहला हाथ जो होता है वो सिंगर का होता है। जैसे इन्होंने कहा कि आवाज़ गा तो सभी लेते हैं, लेकिन उसको किस अंदाज में गाता है, वो गायकी में ही जो बोल हैं या गीत हैं या उसकी जो ट्यून है वो अपने आप में उभर के आती है। कि जब ये दर्दे दिल दर्दे जिगर गाना चला तो जब उन्होंने शुरू किया गाना माइक के ऊपर, तो हजारों गाने गा चुके थे और मुझे लगा कि ये गाना मेरा हिट हो गया। पहली लाइन में मेरा दिल खुश हो गया जब उन्होंने सिर्फ इतना गाया, दर्दे दिल दर्दे जिगर, बस, है ना, काफी है ना सर। अभी भी जब ये गाना कभी हम स्टेज पे कभी गाने का मौका मिलता है, यू जस्ट हैव टू से दर्द दिल। अच्छा, मेरे टाइम पे ताली नहीं बजाई आपने, कितने बेशर्म है। मैं छोटा हूँ ना सर, इसलिए मैं उम्र में छोटा हूँ ना, इसलिए सिंगर आ गया तो देखा। कोई बात नहीं, होता है। मैं उम्र में छोटा हूँ सर, इसलिए मुझे प्यार दिया तुमने। फैंटास्टिक। तो आप मेरा साथ देते रहिए, पहले मैं सोचा था इनको कहूँ, फिर मैं बोला नहीं, इनकी बारी आने दीजिए। मैं आपके साथ में काफी काम कर चुका हूँ, मैं आपका इशारा समझ चुका था। तो गाने में रूह जो है और जो परफॉर्मेंस आप एक्टर की देखते हैं स्क्रीन पे, खासकर गाते हुए, उसमें सिंगर का बहुत बड़ा हाथ है। सोनू ने भी मेरे गाने गाए हैं, अनुराधा जी ने भी गाए हैं मेरे गाने। और पानी पी लो। थैंक यू भैया, आपने जिंदगी बचा दी। तो ये जो
मैं सीरियस बात कर रहा था। प्लेबैक सिंगर की चॉइस करते हुए हम डायरेक्टर को, म्यूजिक डायरेक्टर को, लिरिक्स राइटर को बहुत डिस्कशन करनी पड़ती है सर। ऐसा नहीं कि ये एक्टर के लिए कौन सिंगर रहेगा, इसका अंदाज क्या है, इसका गायकी का इमोशन क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है, यू नो। ये सुभाष जी आप, मुझे याद है जब इनका मैंने फर्स्ट गाना गाया था, सो इनकी बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द स्कूल ऑफ एक्सप्रेसिंग, तो मुझे भी जैसे पूरा बताया जा रहा था कि ये गाना शाहरुख खान पे ऐसे होगा, यहाँ पे वो ऐसे करो, इसमें मुझे वो एनर्जी चाहिए, तो ये सब हम क्यों डिलीवर कर पाए? क्योंकि हमारा गुरु मोहम्मद रफ़ी थे, तो हमने सीखा था कि वो कैसे, वो होते तो उस पर क्या करते, तो उस्ताद क्या करता तो चेला उससे थोड़ा सा करके सीख के वो कर गया। मुझे एक बात याद है कि मैं एक फिल्म बना रहा था ताल, तो ताल में एक गाना था, इश्क बिना क्या जीना यार, इश्क बिना क्या मरना, तो उसमें मेल का पार्ट आता है सेकंड अंतरे में, और हमने इनको बुलाया, रहमान साहब ने और मैंने, और ये रिकॉर्डिंग में आए। तो इनका एक अच्छी आदत है कि बहुत स्टडी करते हैं गाने को, और बहुत क्विक स्टडी कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये गाना का एक्सप्रेशन आपको कैसे चाहिए, और मुझे अभी तक याद है, और मैंने इनसे कहा ये जो अंतरा है रफ़ी साहब की तरह गा दो यार, याद है? और ये बात मैंने बहुत से सिंगर्स को कही। मैं उस जमाने का हूँ जब रफ़ी साहब चले गए थे, और मैंने हर बार कोशिश की सिंगर्स को बताने की कि रफ़ी साहब का तरह गाइए, सभी तरह जो एक्सप्रेशंस हैं उनका कहीं से इंस्पिरेशन लीजिए। मैं आपको अभी बताता हूँ कि एक मेरी दूसरी फिल्म थी विधाता, उसमें शम्मी कपूर का था, हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है तक सब जो अनवर जी ने गाया तकदीरों का, वो बना ही ऐसा था कि मुझे बार बार रफ़ी साहब याद आते थे, क्योंकि शम्मी जी के लिए गाना था इसी, और वो एक्सप्रेशन जो आए ही नहीं, मतलब मैं सोचता था, क्योंकि मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। फिर इवन सॉन्ग लाइक हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, ये गाना सिर्फ रफ़ी साहब ही गा सकते थे और कोई नहीं गा सकता था, पर वो नहीं गा सके, इसलिए हमने उनकी जो फॉलोअर्स थे, जो दूसरे बच्चे थे हमारे, उन्होंने भी अच्छा गाया, चाहे मोहम्मद अजीज़ थे और दूसरे सिंगर थे, लेकिन एक ही बात मैं कान में जाके बोलता था, रफ़ी साहब, रफ़ी साहब, और वो समझ जाते थे। आप सोचिए कि मैं कितना बड़ा भगत रहा हूँगा रफ़ी साहब का। थैंक यू रफ़ी साहब। मुझे लगता है जो सुभाष जी बोल रहे हैं, रफ़ी साहब के प्रस्थान के बाद मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, मनहर उदास, एक पूरा एक परंपरा, हाँ अनवर जी, एक पूरी परंपरा है जो रफ़ी स्कूल ऑफ म्यूजिक। मेरे हिसाब से कम 18 मोहम्मद रफ़ी पैदा हुए उसके बाद। हमारा जो शो है रफ़ी साहब को याद करने का, आसमान से आया फरिश्ता, पर्दे पे आसमान से जो फरिश्ता उतरा था वो शर्मिला जी के लिए उतरा था, और शर्मिला जी पधार चुकी हैं, उनका बहुत स्वागत है, हम लोग बहुत आपका एहतराम करते हैं। शम्मी कपूर और शर्मिला जी के जितने सेंसुअस, जितने बेहतरीन गाने रफ़ी साहब और आशा जी ने गाए हैं वो आप सबको याद है, और मुझे लगता है कि ये ट्रिब्यूट और सार्थक हो रहा है कि हमारे सामने बैठ के शर्मिला जी सुन रही हैं। दीदी अनुराधा जी, मैं चाहूँगा कि जी, ओह माइक प्लीज, शर्मिला जी को माइक दीजिए। तो शर्मिला जी को प्लीज ताली बजाइए और उनको स्टेज पे बुलाइए। हाँ, और मेरे ख्याल से शर्मिला जी को स्टेज पे बिठा, इससे बड़ा मौका क्या मिल सकता है? उन्होंने खुद, हमें अच्छा लगेगा, आप बैठेंगे साथ में, आपको आना पड़ेगा, नहीं तो हम चारों आपके पास आएंगे। प्लीज जस्ट अ चेयर फॉर शर्मिला जी। आप चाहेंगे तो प्लेबैक अनुराधा जी गा देंगे आपके लिए। आप आइए, आप आएंगे तो शर्मिला सुन लेंगे। Thanks for the comment. Welcome. आइए, एक चेयर भेजेंगे। आपको वो लाइन तो गानी पड़ेगी। जाना को प्यार है तुमसे, जाजा तो जाजा। देखिए, इस बात की गारंटी, इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये मुझसे अच्छा गाएंगे। I am part of the audience, huh? I'm perforce, because I had to come.
मैं चाहूंगा कि दीदी कुछ शुरू करें, उसके पहले आसमान से आया फरिश्ता कर दो। इसके लिए आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे जाना, कहो प्यार है तुमसे। क्या बात है, इन्होंने ज्यादा बोला और ये चले गए। शर्मिला जी, उस गाने के बनने का और जो भी आपका अनुभव है, जो भी आप एनेक्डोट यहाँ साझा करना चाहें। काफी साल पहले के है ना, इट वाज इन व्हाट कश्मीर की कली उससे भी पुराना है, 67 में। एंड शमी जी वाज कमिंग इन अ helicopter, right? And he was wearing a dressing gown sort of a thing, or a bathrobe, or kafi. I mean, women were not allowed to do that sort of thing, but you know, kafi showing his thighs and legs and all that, and उनको बिल्कुल कोई रिहर्सल में कुछ करते थे और टेक में कुछ करते थे, और हम लोग वो क्या बोलते हैं वो वाटर स्कीइंग कर रहे थे, एंड इट वाज इन अ मोटर लॉन्च। और वो हेलीकॉप्टर में, और एक हाथ में वो पकड़े हुए और एक हाथ, आई मीन जस्ट इमेजिन कैसे बैलेंस कर रहे थे, और एक जगह पे बिल्कुल बगैर रिहर्सल कुछ भी, ही जंप्ड onto the boat. The launch बिल्कुल, you know, it was moving, anything could have happened, and the helicopter guy also lost his balance. And it was quite risky, so Shamiji was Shamiji. It was such fun working with him, and working with Rafi Saab on, we did this with Shankar Jaikishan ji, and so I have to walk across the stage like that, and then, and then he calls me, and then I have to sing with him. And then I was away from the mic, so they called me closer. Ji, bilkul. And then I had to sing with him, Rafi Saab. That you haven't. None of you have, right? I have worked with him on stage, yes, and sung with him on stage. Thank you. इस बारे में मैं बात करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था इनफैक्ट, कि शमी अंकल खुद ने कहा था ये, कि हर रिकॉर्डिंग में, रफ़ी साहब की हर रिकॉर्डिंग में मैं रहता था, हर रिकॉर्डिंग में। ऐसा कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी कि मतलब अपना मिस होते थे, और वो बोलते थे कि रफ़ी साहब मैं यूँ करने वाला हूँ, यूँ करने वाला हूँ, तो उस हिसाब से रफ़ी साहब अपने अदाएँ दिखाते थे। एक गाने पे वो नहीं थे, वो शायद पेरिस में थे, पता नहीं कहाँ थे, तो ही वॉज नॉट फॉर दैट रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग जब हुई तब शूटिंग के टाइम पे इट वाज लाइक, शमी अंकल वाज वेरी वेरी हैप्पी, बोले कि अरे ये तो मेरे हिसाब से बना हुआ है जो गाना। तो उन्होंने अब्बा को फ़ोन किया, डैड को फ़ोन किए, और कहा कि अपने रफ़ी साहब गाना तो आपने वैसे गाया जो मैं चाहता था, ये कैसे किया आपने? तो उन्होंने कहा मुझे क्या करना था, मुझे जब पता चला कि ये शमी के ऊपर ही गाना होने वाला है, तो एक हाथ इधर फेंकेगा, एक हाथ उधर फेंकेगा, एक टांग इधर फेंकेगा, एक टांग उधर फेंकेगा, तो मैंने गा दिया, और वो गाना था आसमान से आया फरिश्ता, सेम सॉन्ग। यस, अगर आप रफ़ी साहब की क्वालिटी देखिए तो वो हर स्टार्स सिंगिंग, प्लेबैक सिंगिंग से पहले वो एक्टर का नाम पूछते थे कि पर्दे पे कौन गा रहे हैं। देवानंद गा रहे हैं, शमी साहब गा रहे हैं, और दिलीप साहब गा रहे हैं, सबके बारे में पूछते, और जॉनी वकर तक, और सिचुएशन क्या है, उसका डीपर मीनिंग क्या है, नहीं वो तो खैर हर सिंगर भी पूछते हैं, पर वो खासकर पूछते थे। इसीलिए अगर आप देखें तो उनकी जो वैरायटी ऑफ परफॉर्मेंस है, सिंगिंग है, वो एक्टर के हिसाब से इतनी मैच करती थी कि इतने 15 स्टार्स के लिए गाना एक ही सिंगर में, और ऐसा लगे कि वो स्टार ही गा रहा है, क्योंकि उनके बॉडी मूवमेंट जो थी, मुद्राएं थी, वो साथ में मिलती थी उनके साथ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मतलब ये एक बहुत ही सुंदर कोइंसिडेंट है कि शर्मिला जी हैं और सारे इतने बड़े दिग्गज हमारे समय के बात कर रहे हैं। शर्मिला जी का एक गाना है रफ़ी साहब का, ये रात फिर ना आएगी का, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, और इशारों इशारों में दिल लेने वाले कश्मीर की कली का तो जवाब नहीं है। और बहुत बाद में आके आराधना में
गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली कली। तो मुझे लगता है कि वो क्या बात थी, वो करिश्मा जो सेलुलाइट पे उतरता था और जो रफ़ी साहब करते थे। और शास्त्रीय संगीत, आपको राग देखना है, आपको हमीर सुनना है, मधुबन में राधिका नाचे रे, आपको कलावती सुनना है, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, आपको यमन कल्याण सुन रहा है, मन रे तो काहे न धीर धरे, आपको झंझोटी सुनना है, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। हर राग, और अगर आपको डुएट में जाना है, मारू बिहाग सुनना है तो तुम तो प्यार हो सजना, तो दरबारी रात में तेरी याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज बहुत बड़ी बात सुभाष जी ने कही, जो मैं हमेशा महसूस भी करता हूँ बायोग्राफीज करते, खासकर प्लेबैक सिंगर्स की, कि वो एक फिक्स मीटर में दूसरे की आवाज़ बन के गाना है। सिर्फ सुरैया, केएल सहगल, किशोर कुमार को ये मुहैया रहा कि वो पर्दे पे अपना गाना गाते थे, मतलब वो भी रिकॉर्ड होता था लेकिन खुद की आवाज़, बाकी दूसरों की आवाज़ और दूसरों का लिपसिंग। पता नहीं कितनी सारी गायिकाओं के लिए आपको लिपसिंग करना पड़ा होगा। लता जी ने मुझे बताया था कि जब मैं शर्मिला जी के लिए गाती थी तो मैं ध्यान रखती थी कि वो किस तरह से होंठ खोलेंगी। जब नूतन के लिए गाती थी तो मैं उस तरह से ताल में जाती थी, उस तरह से सारे ऑक्टेव में जाती थी। मैं चाहूँगा कि उस रागदारी की दर्शना 2 मिनट 3 मिनट में आप दोनों लोग मिल के कर दें रफ़ी साहब के किसी खूबसूरत डुएट को। अंत में तो बाद में चलेंगे जब आप करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि सोनू भाई और गिव अ बिग हैंड प्लीज। सा गा प दा रा रा दा रा। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। बहुत धन्यवाद। शाहिद साहब, मैं जानना चाहूँगा, आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा घर में उनका बिहेव म्यूज़िक का, कि कैसे वो क्या रियाज करते थे, आप लोगों की कैसी दिनचर्या रहती थी। कोई ऐसा एनेक्डोट जो आप शेयर करना चाहें हम लोगों से, जो आपको ये महसूस कराए। मैं दे रहा हूँ, इसके बाद माइक खाली हो जाएगा। तो जो आप यहाँ शेयर करना चाहें कि एक बेटा अपने फादर को, जो आपने बैठते ही कहा कि हमने कभी उनको द मोहम्मद रफ़ी की तरह नहीं देखा, एक वालिद के तौर पे देखा, एक सिंगर के तौर पे जब आप देखते थे तो वो क्या था? सिंगर के तौर पे तो वो तो बाद में, जैसे मैंने बताया, में जब घर के अंदर अपना डैड अपना अकेले जब बैठे रहते थे, ज़्यादातर वो अपने शाम के वक्त जब फ्री रहते थे तो ज़रा वरांडा में अपना ये गार्डन के अंदर हमारे बंगले पे तो बैठे रहते, तो सिर्फ हमिंग करते रहते थे। गाना कभी गाते नहीं थे कि मतलब ये मैं गाना गा रहा हूँ कुछ। हाँ, ये ज़रूर था कि मतलब कभी कोई रिकॉर्डिंग से आते थे तो कोई मस्ती वाला गाना होता था तो बोलते थे कि अपना बच्चों को बुलाते थे, बोलते इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और बात भी ऐसे इधर आओ भी बोलते तो इतने सॉफ्ट बोलते, कभी कभी सुनाई भी नहीं देता हम लोगों को कि अब्बा बोल क्या रहे हैं। तो खैर जब बुलाते थे तो हम लोग कहते थे, जैसे फॉर एग्जांपल वो गाना था अपना अंदाज का, रे मामा रे, उसमें अपना अब्बा ने बोले हम तो गए बाज़ार में लेने को लड्डू या कुछ ऐसा, तो अपना बोले ये गाना आज मैंने गाया। तो उसमें जैसे हम बैठे रहते तो अपना मेरे नाम का भी गाना बना देते थे वो, हम तो गए बाज़ार में लेने को शाहिद वाहिद कुछ ना मिला, पीछे पड़ा कुछ भी बना देते थे वो। तो हम लोग हंसते थे, वो यंग तो मस्ती मजाक। हाँ, ये था कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत अच्छी बात थी कि डैड ने व्हेन ही केम होम एंड बच्चों को उस वक्त अपना ही वाज वेरी एक्साइटेड, बोले कि यहाँ हूँ
आज पता है तुम्हें, आज मैं किसके साथ गाना गाया? आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया. Believe me, I'm telling you. And that time, Dad himself, in his genre, in his, मतलब उनकी अपने लाइन में, he was a superstar, Dad. But he said, he thought कि मतलब नहीं, मैंने आज एक सुपरस्टार के साथ गाना गाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमिताभ बच्चन के साथ मैं गाना गा रहा हूँ. तो हम लोग भी बच्चे थे, तो हम लोग पूछे थे, अच्छा डैड कैसे दिखता था वो, कितना लंबा था, कपड़े क्या पहना था, घड़ी क्या पहना था, हम लोगों. एंड ही इज इंटरेक्टिंग. बोले अरे उसने ये जूता पहना था, उसने ये पैंट पहनी थी, उसने ये घड़ी. आई मीन ही वाज जस्ट टॉकिंग दिस वे, मतलब इतना लाइक अ चाइल्ड. एंड सी द मॉडेस्टी ऑफ माय फादर. आई मीन बिलीव मी, उनको खुद को महसूस नहीं कि वो कितने बड़े थे. बिल्कुल वो उनको पता ही नहीं था कि मतलब मैं भी इतना बड़ा नहीं. ही डिड नॉट थिंक दैट वे. उनकी सोच ही नहीं थी ये, बस मुझे गाना गाना है. ही नेवर यूज्ड टू सोशलाइज. डैड नेवर यूज्ड टू सोशलाइज. वो अपने काम से मतलब रखते थे. काम खत्म हुआ सीधे घर पे आते थे. ही वॉज विद हिज किड्स, बच्चों के साथ खेलना. एंड ही वॉज वेरी, ये नहीं कि मतलब वो बच्चों में बच्चे बन जाते थे. ही वॉज लाइक दिस, मतलब वो बच्चों में बच्चे बन जाते थे. कोई अगर फंक्शन भी होता था, कोई अपने फिल्म फंक्शन होता है, जैसे अवार्ड मिला कुछ ऐसा, तो वो ड्राइवर को बोलते थे रुको मैं आता हूँ. तो वो बैठे रहते थे, जैसे उनका नाम आता था गए स्टेज पे और अवार्ड लेके सीधे वापस. नेवर यूज्ड टू सिट डाउन लिसन टू व्हाट इज हैपनिंग ना. ही यूज्ड टू कम सिट इन द कार एंड कम होम स्ट्रेट अवे. वैसा शादी में जाते थे तो एक साइड से जाते थे, दूसरे साइड से निकल के गाड़ी में बैठ के फिर निकल जाते. ही वाज दैट. ही नेवर यूज्ड टू सोशलाइज. द very humble, very soft spoken, very charitable person. In fact, अपने एक वर्ड बताऊं कि दयावान. रफ़ी साहब ऐसे थे, ये नहीं कह रहा हूं कि I mean he was my father. उनकी दया के किस्से अभी मैं सुनाता हूं कुछ. तो I mean he was a great father, honestly. रफ़ी साहब की जो बात आपने उठाई, वो अकेले ऐसे फनकार, ऐसे प्लेबैक सिंगर रहे पूरी उस दौर में, जिन्होंने कभी कमर्शियल एंगल से अपने गानों के लिए नहीं सोचा. उनको कभी नहीं मालूम होता था कि कितने पैसे आने वाले हैं, इस पे क्या बात करनी है. उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि टॉप पे होने के बाद एक तरफ लीक थी नौशाद, एस.डी. बर्मन, जयदेव, रोशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस परंपरा में गा रहे हैं. दूसरी तरफ किसके गाने गा रहे हैं? सुधीर फड़के का गाना गा रहे हैं, दिलीप ढोलकिया का गाना गा रहे हैं, लच्छी राम तंवर का गाना गा रहे हैं. किसी ने पैसे दिए तो बहुत अच्छा, नहीं पैसे दिए तो कोई बात नहीं. उषा खन्ना ने जब प्लेबैक सिंगर, जब म्यूजिक डायरेक्शन में आई और दिल दे के देखो के लिए गई, तो सबसे पहले रफ़ी साहब को अप्रोच किया कि मुझे बहुत डर है कि कहीं मैं हिट ना हुई तो आप मेरी हेल्प कर दें. तो उन्होंने दिल दे के देखो के लिए गाना गाया और वो एक बहुत ही मकबूल फिल्म हुई. तमाम सारे ऐसे गाने, तमाम ऐसी फिल्में हैं जिसके जमाल सेन की म्यूज़िक है. दायरा फिल्म है और एक गाना है मुबारक बेगम के साथ, देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा. आप जरूर जाके यूट्यूब पे सुने अगर आपने सुना नहीं है. मुझे लगता नहीं है कि शताब्दियों में ऐसा कोई गाना बन सकता है जैसा डुएट वहाँ पर है, या मन्ना डे के साथ उनका डुएट है रुस्तम सोहराब का, जिसमें उन्होंने गाया है फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम हम ना भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम. आज मैं शाही साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा आपने कौन सा गाना याद कर लिया. मैंने कहा ये सब गाने ऐसे हैं जो रूहानियत पैदा करते हैं. और मैं चाहूँगा कि सोनू जी आप ये बताएं कौन से ऐसे गाने हैं जो उनके आप अक्सर मन में गुनगुनाते रहते हैं, जो एज ए व्याकरण, एज ए ग्रामेटिकल म्यूज़िक आपको टफ लगते हैं, जिस पे रुक करके नए बच्चों को काम करना चाहिए कि अगर उन गानों की नोटेशंस पे जाएं तो वो और बेहतर हो सकते हैं बिना ऑटो ट्यून के. रफ़ी साहब का जो रेपर्टोर रहा है ये एक अपने आप में यूनिवर्सिटी है. आप कई चीज, अगर आप सही मायने में जैसे पात्र हैं तो आप किसी भी हद तक उनसे सीखते जाएंगे. आप पात्र नहीं हैं तो आपको मिल जाएगा जो मिलना है, बट एवरी टाइम यू विजिट रफ़ी साहब यू विल लर्न समथिंग न्यू. अब ये जब नए आए थे उस समय, जब ये मैं जिंदगी में हर दम रोता ही, कड़क आवाज़ में कहते थे वो, रोता ही रहा हूँ ये आवाज़ की. सो हाँ,
सुहानी रात ढल चुके। इसके बाद मैंने अपनी आवाज़ में सॉफ्टनेस लाने का प्रयास किया, क्योंकि आवाज़ तगड़ी थी ही इनकी, रियाजी गला था। और उनकी जो पहले के रेफरेंस पॉइंट थे, सहगल साहब वगैरह, सबकी आवाज़ें बहुत बड़ी थी आवाज़ें, तो ये भी तगड़ी आवाज़ लेकर आए थे। बट इनको ख़याम साहब ने या अनिल बिस्वाज किसी ने कहा इनको कि जैसे तरत महमूद जी की आवाज़ में एक सॉफ्टनेस है, वो आप करो। रफ़ी साहब ने इस पर सोच कर काम किया, और जब वो काम किया तो ऐसा काम किया कि वो आदमी ने मतलब तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम, तो वो शाम को साए में शाम कर दूंगा, साए में शाम, साए में शाम, तो वो शाम को दिखाया। अब उनका गाना है दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तो न आए तेरी याद सताए। कैसे किसी को याद सताती है, यार तेरी बहुत याद आ रही थी यार, अब उसको कैसे हम कन्वे करेंगे, तो न आए तेरी याद सताए। इसके थर्ड अंदर में एक लाइन आती है, दिल से मेरे दिल के मेरे पास हो इतने और हो कितने दूर, तुम मुझसे मैं खुद से परेशान। आपको लगेगा कि मतलब बहुत परेशान है आदमी है, बहुत। तुम मुझसे मैं खुद से परेशान, इतना आपको मालूम पड़ेगा आदमी क्या किस मतलब ये उसमें डूब के गा रहा है। एक गाना है इनका, छोले ने दो नाजुक, अभी तो टी टॉटलर बनता है, शराब तो कभी पी नहीं है, तो ये कैसे इस चीज़ को बयां करेंगे, क्योंकि कोई थोड़ा इमेच्योर सिंगर हो तो वो क्या करेगा, छोले ने दो नाजुक होठों, वो ऐसे कर देगा इमेच्योर सिंगर। इस बंदे को पता है कि कितना नशा दिखाना है, कितनी गायकी भी आ जाए, बेसुरा भी ना गाऊं और लगे कि बंदा थोड़ा बेसुधी में गा रहा है। इस गाने को आप ध्यान से सुनिए, कितना बैलेंस से एक शराब का नशा भी दिखाया है पर ओवरडू नहीं किया है कि मतलब लगे कि यार ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। अब ये आदमी गा रहे, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते, लगेगा आपको कि कोई ऐसे फ्रीडम फाइटर गा रहा है, कर चले हम फिदा जानो तन, ये ऐसा गाना है, कुछ सुने आप हिल जाएंगे कि इस बंदे ने क्या गाया हुआ है। इनके कई ये गाना है इनका, ये गाना एलपी का फर्स्ट गाना था इन्होंने गाया था, और ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गाने को जब उन्होंने गाया तो उन्होंने जो पैसे दिए, तो ये सबको पता है और फिर जिनको नहीं पता उन्होंने वो पैसे लिए और उसको वापस दे दिए और बोला आधे तुम रख लो और आधे तुम रख लो, लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। तो दिस इज हाउ वो गाना था, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, तेरे गम की उम्र दराज हो, वो ज़माना खुदा करे, खुदा खुदा करे मेरे प्यार पर तुझे नाज, नाज को दिखाना है, तुझे नाज हो तेरे प्यार ने। तो ये तो यूनिवर्सिटी है, आप मतलब ये तो मैं आई कैन गो ऑन, बहुत सारे आप करते रहे, हम लोग को बहुत आनंद आ रहा है। अब यही बंदा गा रहा है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, ये कोरे काला तंदाना, लगता है कि महमूदी गा रहा है। और ये आदमी गा रहा है, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए,
आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे ये कैसा सिंगर है कि ये आदमी की आवाज दिलीप कुमार पे भी सूट कर रही है, जॉनी वॉकर पे भी सूट कर रही है, महमूद पे भी सूट कर रही है, और मतलब और ऋषि कपूर पे भी सूट कर रही है। कैसे सिंगर है ये? जब ये बंदा भजन गा रहा है, हरिओम, लगता है कोई पक्का कोई हिंदू ऐसे गा रहा है, मुसलमान नमाजी आदमी है। ये कैसे वो गायकी में इनका धर्म परिवर्तन कैसे हो जाता है? ये कैसे लगता है कि हाँ बहुत बड़ी बात है। आप हर कोई नहीं कर सकता ये चीजें। मैं किसी के नाम भी लूंगा, ऐसे कई सिंगर्स जो सूफी बहुत अच्छा गाते हैं, नहीं दे दो भजन, नहीं गा पाएंगे वो, नहीं गा पाएंगे वो। ये बंदा हमद गाता है। मैंने कि रमज़ान की अजमत की मैंने भी वर्जन गा रखे हैं इनके, इसलिए मुझे सब मालूम है इनका। ये आदमी रमज़ान के गाने भी गा रहा है, ये राखी के भी गाने गा रहा है। ये आदमी, अच्छा दुनिया का सबसे फेमस इंडिया का हैप्पी बर्थडे सॉन्ग कौन सा है? मोहम्मद रफ़ी। मतलब कुछ छोड़ा ही है। देशभक्ति इन्होंने गा रखे हैं, भजन इन्होंने गा रखे हैं, कव्वाली इन्होंने गा रखी है, सैड सॉन्ग इन्होंने गा रखे हैं, रोमांटिक सॉन्ग्स ये गा चुके हैं, ऊंची आवाज ये गा चुके हैं, गजल ये गा चुके हैं, भजन ये गा चुके हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स ये गा चुके हैं। छोड़ा क्या है? लोफर सॉन्ग्स गा चुके हैं। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं किस 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 किसको किसको ओ किसको प्यार करो, कैसे प्यार करो। लगता है कि ये आदमी, ये कौन है आदमी? ये कितना बदमाश होगा। कोई कह सकता है कि ये आदमी से बोलेगा आओ जा, आ जाओ। ये कोई कह सकता है कि ये आदमी ऐसा होगा? कितनी मस्ती करते हैं आदमी। सो इनके ये एक ऐसे वोल्केनो थे जिन्होंने कभी, जो सिर्फ माइक पे फटते थे ये माइक के अलावा फटते ही नहीं थे। माइक में ये वोल्केनो दहाड़ते थे, और उसके अलावा इनके अंदर में सब भरी थी, मस्ती, आई थिंक सेंस ऑफ ह्यूमर, सब इनको पता होगा अंदर से, सब इनके खुराफात भरी पड़ी होगी, पर वो दिखाते नहीं होंगे, वो गाने में उसको अभिव्यक्त करते थे। सो दैट इज द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब। नहीं, बहुत सुंदर, क्या बात है सोनू भाई। आपने कहा, मुझे कुछ होली के गाने याद आ रहे थे, जो नौशाद, शकील बदायूनी और मोहम्मद रफ़ी। आप आन का ले लो, खेलो रंग हमारे संग, आप कोहिनूर का ले लो, होली आई रे, सॉरी तन रंग लो जी आज मन रंग लो। हर जगह रफ़ी साहब मौजूद हैं। और एक नात कोई है ही नहीं उसके अलावा, और एक नात है सोहिनी महिवाल की, मेरा बिछड़ा यार मिला दे सदका रसूल का। तो क्या खूबसूरत गाया है लता जी और रफ़ी साहब ने मिलके। मुग़ल आज़म का जो सबसे मशहूर गाना है, प्यार किया तो डरना क्या, वो सबको याद है कि वो एक मोहब्बत के ऐलान का गाना है। उसी फिल्म का गाना है ए मोहब्बत जिंदाबाद, जिसमें संगतराश अरे क्या ऊंची पिच पे ले जाके गाता है। और जितने हाई ऑक्टेव के गाने, उसका एक बहुत सुंदर वर्जन है कि जंगली के लिए वो गाना रिकॉर्ड हो गया, एहसान तेरा होगा मुझ पर। फिर वो गाने को सायरा बानो जी को, चूँकि लता जी अवेलेबल नहीं थी, और बाद में शशिधर मुखर्जी ने सोचा, सुबोध मुखर्जी ने, कि ये तो फीमेल वॉइस में भी होगा, इसको सायरा जी भी करेंगे। अब शूट होना है क्योंकि शमी कपूर की डेट नहीं है, ये मुझे लता जी ने बताया। तो रफ़ी साहब की आवाज़ चला के लिपसिंग कराई गई सायरा बानो को। अब वो जब रफ़ी साहब की आवाज़ है, मेल वॉइस में है, तो उन्होंने ज़्यादा मुँह खोल दिया उस तरह से। फिर वो गाना दिखाया गया लता जी को कि ये तुम्हें गाना है, तो कहा ये क्या बदतमीजी है, ये इस गाने पे मैं अब इसको वर्जन करूं। बोली कि हाँ, तो बोले कि वो तो दहाड़ के गा रही है सायरा, तो बोले कि वो तो सायरा बानू से पूछा कि ये क्या किया, तो उन्होंने कहा जैसे गाना था हमें मीटर मिलाना था, तो हमने उस तरह से लिपसिंग कर दिया। तो इन्होंने कहा मैं ये नहीं करूँगी। तो शंकर जयकिशन ने कहा दीदी आपको करना पड़ेगा क्योंकि गाना तो रिकॉर्ड हो गया और जाना है। तो लता जी ने कहा मुझे पहली बार जिंदगी में रफ़ी साहब के साथ आवाज़ मिलाते हुए सायरा बानो के लिपसिंग ऐसे देख देख के गाना पड़ा। मेरे सामने स्क्रीन चलाई गई गाने की कि ये गाना तुम्हें गाना है, और मैं देख रही थी और गा रही थी, देख रही थी गा रही थी। ये है मोहम्मद रफ़ी। मैं चाहूँगा अनुराधा जी कि आप अपने साथ के कुछ एनेक्डोट्स बताएं, और साथ की रिकॉर्डिंग के, और कोई ऐसा गाना जो आपने उनके साथ गाया है उसकी बात। यादें तो बहुत हैं, लेकिन एक ख़ास चीज़ जो उनसे सीखने जैसे है हम सब के लिए, वो ये है कि चाहे वो किसी भी ऑक्टेव में क्यों ना गाएं, तो उनकी वॉइस हमेशा एक जैसी रहती थी। इन द हाईएस्ट ऑफ पिच भी कभी भी ऐसे शार्प
या स्ट्रेसफुल नहीं लगती थी। आप कोई भी गाना उठा के देखेंगे तो वो हमेशा एक जैसे, मतलब दैट इज़, वो टोन जो है वो कभी नहीं चेंज हुआ, विच इज़ अ रेयरिटी। और आप, सिर्फ आप नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा गाने गाएं, बिकॉज आई थिंक जैसे सुभाष जी ने कहा, देयर वाज सो मेनी singers who came close to Rafi Saab, but I think the one who came really closest जी, is बिल्कुल। hands down Sonu, because when you are imitating a singer तो आप उनकी singing imitate करते हैं, लेकिन you know when the aura, he tries to match the aura of the singer or the singing, so that's where I think he has done real justice। और मैं खुद भी उनसे गाने सुनना चाहूँगी। क्या बात है, क्या बात है। कुछ उनके बहुत सॉफ्ट टोन के जो बिल्कुल बहुत कम म्यूजिक के साथ है। एक मदन मोहन जी का हंसे जब का तुम जो मिल गए। मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा गाना, अरे ये माइक अच्छा है, मेरा माइक तो बकवास था। तो अच्छा मतलब सबसे खराब माइक मुझे दिया आप लोगों ने। तभी सोच रहा था कि हाँ वो तो एक गाना है रफ़ी साहब का, मैं आपको एज अ सिंगर, क्योंकि आप तो, अनुराग जी तो इसकी एक्सपर्ट हैं। नॉर्मली क्या होता है कि कोई गाने को जितना इनसिक्योर्ड आदमी गाता है ना, वो ज़्यादा हरकत दिखाता है, और जिसको अपने काम पे सिक्योरिटी होती है, श्योरिटी होती है, वो हरकत लेगा भी। बहुत सुंदर बात। वो हरकत लेगा, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि अरे ले भी लिया, ये कब हुआ। तो ये गाना है, अच्छा मैं मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, मैं ना लगातार शोज़ कर रहा हूँ, तो मैं कल रात को भी बिल्कुल नहीं सोया हूँ। सो मैं आपको सिर्फ बता दूंगा हल्का सा कि उन्होंने, आप घर जाके सुनो उसको ठीक से। आई वुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट करेक्टली, बिकॉज मैं आज जाके, मैं घर जाके, मैं पिछले 25 से घर पे नहीं गया मैं अपने, सो आई एम गोइंग टू स्लीप टुनाइट, बट आई एम गोइंग टू गिव दिस एग्जांपल। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, मुखड़ा हो गया अभी, पहला अंतर हो गया, अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादुमा थे हम उनको भुला के, अचानक ये क्या हो गया को आप सुनना जरा ध्यान से, कि अचानक ये क्या हो गया। अच्छा, अचानक ये क्या हो, ये नहीं बोला, अचानक ये क्या हो गया, इतना सा डिले है, इतना भी नहीं कि मतलब क्या हो, ये भी नहीं है, अचानक ये क्या हो गया, तरररर, हो गया। सेकंड अंतरा खत्म होता है, हमें तो यही था गुरु गम यार है हम, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल, वो चल कर कयामत की चाल आ गया। अभी गाना खत्म हो रहा है, वन टेक आने वाला बंदा गड़बड़ नहीं कर सकते इसके बाद, क्योंकि गाना खत्म हो रहा है। वो चल कर कयामत की चाल आ गया, हुए शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, सवाल ये नहीं लिया उसने, सवाल हरकत ये होती है, सवाल आ गया हुए शाम, ऐसे ये आपकी फिल्म है, जब जब आपकी फिल्म की चर्चा होगी तो आपको बोलना पड़ेगा, माइक है आपके बगल। मेरे हमदम मेरे दोस्त, मेरे हमदम मेरे दोस्त, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। Yes, it was such a beautiful song, and working with Dharamji was, and we share a birthday, वो भी 8 दिसंबर और मैं भी 8 दिसंबर, मगर 10 साल बड़े हैं। मगर what a wonderful, and once it has nothing to do with song per se, but about the shooting of Mere Humdam Mere Dost, and there was a test match in Kolkata, and I had to be there. और उस वक्त डबल शिफ्ट होते थे, तो I was shooting for Mere Humdam Mere Dost at night, and सुबह there was some other 7 to 2, and then I was catching a flight, and this song was going on.
not Dharam song, but the other one, Chalkaye Jam was going on. And हो गया 10 बज गया मगर शूटिंग कंप्लीट नहीं हुई. सो आई रिक्वेस्टेड धर्म जी प्लीज़ मुझे जाना है आप थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए. तो ही नॉट ओनली एग्रीड मगर वो सुबह 5 बजे तक शूटिंग की. आई मीन कैन यू इमेजिन व्हाट अ वंडरफुल एक्टर ना. ही कोऑपरेटेड विथ मी एंड देन उसके बाद मैं सीधा वो 7 बजे की शूटिंग करके देन आई रिमूव माई मेकअप इन द प्लेन एंड देन went to West Indies and we lost by an innings. But it was wonderful. It was Tiger's birthday and what a wonderful co-actor. नहीं आजकल कोई करेगा ऐसा सुभाष जी बोलिए नहीं ना. But so that was my मेरे हमदम मेरे दोस्त and of course रफ़ी साहब के साथ he was such a wonderful person. I've met him and as you were saying he's बिल्कुल there was no ego whatsoever, you know. He was so met us with so much warmth and it was such a pleasure. He went away so soon. बहुत अफसोस की बात है. मैंने शुरुआत में अपने करियर की क्योंकि हम दिल्ली में थे तो दिल्ली में तो और कोई ज़रिया नहीं था. उस समय तो शोज़ सिर्फ ऐसे होते थे शादियों के शोज़ या बर्थडेज़ के शोज़ ऐसे. तो मैंने बचपन में बहुत सारे ऐसे शोज़ कर रखे हैं. अब तो लोगों के पास में बहुत ज़रिया आ गए हैं. अब तो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं कोई अच्छे होते हैं. उस समय यही था स्टैंडर्ड. तो मैंने बहुत सारे शोज़ करे. तो मैं बड़ा हैरान होता था कि अगर दुल्हन आ रही है बहारों फूल बरसाओ किसी के बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू देशभक्ति का है. लाइन लगे पड़ी है रफ़ी साहब के देशभक्ति के. बारात में ये देश वीर जवानों बारात मैं उस पर ये देश वही होता है वही चल रहा है. मतलब कोई भी है ना कुछ भी हो रफ़ी साहब के ही गाने बजते थे. शराबी अगर लोग डांस कर रहे हैं तो मुझे दुनिया वालों शराब छलकाए जाम तो शराबी बड़े खुश हो रहे हैं डांस हो रहे हैं आइए. तो रफ़ी साहब के गाने ही होते थे हर मौके पे हर अवसर पे. वो जो गाने चुने जाते थे छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार ये इतना कॉमन नहीं था स्टेज पे इतना. दिस वाज नॉट कॉमन. द कॉमन सॉन्ग्स वर आने से उसके आए बाहर जहाँ ये था. तू कहाँ ये बता इस नशीली अगर कोई बहुत दूर से है तो बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फलाए हैं. ये था फेमस. और एक गाना था मुझे इश्क है तुझे से मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी मुझे है तुझे से. वजम ले चुका ना इसमें काफी है. थोड़ा आधा गाना तो सुना दो यार. एक मुखड़े सुना ताकि तो फिर हम इसके साथ मुखड़े के साथ देना चाहते हो तो दूसरा गाना और फिर देना चाहते हैं फिर दूसरा गाना आ जाता है. ठीक है मैं गाता हूं. भैया वो ढोलक वाले थक गए बजाने उनको. सोनू जी एक रिक्वेस्ट है कि उनकी एक कवाली का भी दिखा दीजिएगा रंग. चाहे तेरे होके मायूस तेरे दर से सवाल गाना तो बनता है या पर्दा है पर्दा जो भी. हाँ अभी पूरा गाएगा. चेक कौन सा है आगे da 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 da.
पर्दा पर्दा है पर ओ पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। मैं देखता हूँ जिधर लोग भी उधर देखे, कहाँ ठहरती है जाकर मेरी नजर देखे। मेरे ख्वाबों की शहजादी मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं आशिक महजबीनों का। तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन तेरा दामन न छोड़ूंगा, मैं हर चिलमन मैं हर चिलमन को छोड़ूंगा। ना डर जालिम जमाने से अदा से या बहाने से, सूरत दिखाते दर्द तेरा बना के मुझको इस महफिल में रुसवा न कर दो, रुसवा न कर। हाँ पर्दा नशी को भी पर्दा न कर दो तो पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दा है पर्दा। ठीक है, थैंक यू। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। जिगर दिल में जलाया आपने, दिल जिगर दिल में जलाया आपने। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों, मैं रफ़ी साहब को हम एज अ फैमिली कितना प्यार करते हैं आपको मैं बता दूँ, सच्ची बात है। मैं नया 91 में आया था तो मैं कहीं पर था कुछ शो में, तो शाहिद रफ़ी जी पहली बार मुझे दिखे। मैं देख रहा हूँ ये मोहम्मद रफ़ी के बेटे हैं, और मैं इनके हाथ देख रहा हूँ ऐसे। अब छू तो सकता नहीं दूँ वरना वो गलत समझेंगे मुझे, अगर मैं इनको छूता कि ऐसे कुछ करता तो गड़बड़ हो जाती। अब मैं छू सकता हूँ इनको अब, पर तब अगर मैं ऐसा आता जरा हाथ हाँ ऐसे, तो क्या सोचते मेरे बारे में। सो आई वॉज जस्ट एडमायरिंग कि ये हाय मेरे रफ़ी साहब के हाथ ऐसे होंगे ना,
ये उनका शरीर है ना, ये उनके बदन से पैदा हुआ है, ये बंदा ये रफ़ी साहब से क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी मुझे तब हुई जब मैंने इनको देखा ज़िंदगी में पहली बार. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग. ये मैं हर बार बोलूँगा. सोनू जी, मैं चाहूँगा कि कुछ नौशाद साहब वाला भी काम हो जाए. आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले. आज की रात मुझे मेरी ही सलामी ले ले तो प्लीज़. मैं बहुत, मेरा गला पूरा फटा हुआ है. बोलते मैं सिर्फ एक एक एग्जाम्पल चाहे मेडले की तरह अच्छा, कर दें. नौशाद साहब, रवि, रोशन, तो थोड़ा थोड़ा, SD बर्मन. अरे हाँ, मैं आपको एक, शाहिद भाई, सुभाष जी, शर्मा जी, आपको मैं एक बहुत कमाल की मैं बताता हूँ. देखो सिंगर का क्या होता है. अच्छा ज़्यादा मुझसे, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ. इसके बाद से वो छोटी बड़ी चीज़ें, मतलब मैं आपको बड़ी चीज़ बता रहा हूँ. मैं छोटी मोटी चीज़ नहीं पूछूंगा. अब देखिए, ये कंपोजर कैसे होते हैं, हमें सिखाते हैं अपना संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं ना, तो हम कहते हैं संदेश से आते, ऐसे कहते हैं हम लोग, है ना. अब ये देखिए तो कैसे कंपोजर को बाईपास करना पड़ता है, ये सुनिए आपको. अब ये गाना है अपना, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा, है ना. तो ये SD बर्मन साहब की आवाज ये है. तो सिखाए कैसे होंगे गाने. तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग है, ओ तेरे मेरे सप, उसको रफ़ी साहब ने कैसे गाया. तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहें हम संग है, हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग है. ये SD बर्मन हो गए. अब नौशाद. सुहानी रात ढल चुके, स्केल स्केल कीजिए, स्केल स्केल. सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे. सुहानी रात ढल चुकी, थोड़ा पास है, ना जाने तुम कब आओगे. हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे. So this is Rafi Sahab when he was very young. दुलारी का 49, दुलारी ना 49. नहीं, दुलारी 49. 49 वही उसका. ये फिर आवाज से बदली उनकी. अब ये देखिए मदन मोहन जी के लिए उन्होंने जो गाना गाया, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूँगा, तुम्हारी जुल्फ के. ये इनके और इन्हीं मदन मोहन जी का गाना है. इसका पूरा उल्टा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथ. कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. तो ये कहीं के अभी बहुत सुंदर. एक बार रोशन भी हो जाए तो मैं चुप हो जाऊंगा. कहानी बढ़ती जा रही है. ये गाना ताल जो, हाँ वो अभी करेंगे, वो अभी बताएंगे गाना. वो पहले से तय हो चुका ग्रीन रूम में.
रोशन साहब का जो सबसे प्यारा एक जो रफ़ी साहब ने गाना गा रखा है, वो लिखा भी साहिर साहब ने क्या लिखा है, मतलब वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मन रे तू काहे न धीर धरे, ओ निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे, हो मन रे तू काहे न धीर धरे, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे, ओ मन रे तू काहे न धीर धरे। बहुत सुंदर, बहुत सुहानी रात जो अभी आपने गाया। अनुराधा जी एक उसका कोई बहुत सुंदर किस्सा याद कर रही। काफ़ी साल पहले जब शोज़ बहुत हुआ करते थे, तो रफ़ी साहब के ट्रिनिडाड में, सूरीनाम में प्रोग्राम्स हुए थे, तो उन दिनों में हाउसफुल हुआ था और लोगों के पास सीट्स बची नहीं थी, टिकट्स नहीं बचे थे, एंड सम ऑफ देम कुड नॉट अफोर्ड, बहुत हाई प्राइसेस थे। तो शो तो हुआ एंड नेक्स्ट डे ही वाज रिटर्निंग टू इंडिया। तो जैसे वो आए एयरपोर्ट पे तो उन्होंने देखा कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड कम टू द एयरपोर्ट। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या भीड़ है, तो द ऑर्गेनाइजर सेड साहब आपके लिए भीड़ है ये। मेरे लिए भीड़ किस लिए? तो क्योंकि ये लोग नहीं सुन सके कल आपको उस स्टेडियम में, दे कुड नॉट कम, या सीट्स नहीं थी, टिकट्स नहीं थे। तो उन्होंने कहा यहाँ पर मेरे लिए एक माइक्रोफोन मंगवाओ, और उन्होंने वहाँ पर माइक्रोफोन मंगवाया, लगवाया, और उन लोगों के लिए जो वहाँ पे इकट्ठे हुए थे उनके लिए उन्होंने एयरपोर्ट से गाया। दैट वाज दिस सॉन्ग। जी जी, बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। ये कारवां थम नहीं सकता, ये बात बढ़ती रहेगी, बहुत सारी कहानियां हैं। जी किसका हुआ भी होगा, अंत में होगा। हम लोग समय से बाहर हो गए हैं। एक ही शर्त पे वो हो सकता है कि हम सवाल ना लें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचा है। 3 सवालों का हमारे पास समय है, लेकिन आपसे निवेदन है कि आप अपनी इंप्रेशंस ना दीजिएगा, सिर्फ सवाल करें और किससे मुखातिब है उससे सवाल करें। म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर साहब के साथ रफ़ी साहब जी की अनबन हो गई थी, तो उसके बारे में अगर शायद जी आप कुछ बता पाएँ या सुभाष जी आप बता पाएँ। और दूसरा, किसी फीस को लेके या रॉयल्टी समथिंग को लेके लता जी के साथ भी उनकी अनबन हो गई थी। तो सुनिए, मैं आई एम सॉरी आपको बीच में मैं बोल रहा हूँ। जी जी हो गया, समझ गए प्रश्न। मैं आपको बीच ये हाँ सुभाष जी आप बताइए। आप देखिए, मैं मिलन के बारे में बता सकता हूँ, अनबन के बारे में आप कोई मैगजीन पढ़ लीजिए। हाँ ये भी सही है। हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ दूसरा प्रश्न बता। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम सुदेश सलगावकर है, मैं गोवा टीवी हिंदी से हूँ। जी जी। मेरा सवाल सोनू सर से है। मेरी बात से सभी दर्शक यहाँ पे सहमत हो गए कि जब भी माइक सोनू सर के पास जाता है तो पता नहीं चलता है सोनू सर बात कर रहे कि गा रहे हैं। क्या बात सर, ऐसा ही कुछ मे भी हुआ रहेगा मोहम्मद रफ़ी सर के साथ? कोई किस्सा है सर, आप बताना चाहोगे? इनके पास एक बार पुलिस वाला आया, आप कब आए, और पुलिस वाला चला गया। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुन के, बहुत मजा आ रहा है सब लोग को। थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल, अगर कोई नहीं अभी कोई महिला पूछे भाई, सब पुरुष ही पूछेंगे क्या? जी जी सामने। जी कहाँ पे? हाँ हाँ पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। हाँ बहुत धन्यवाद, उनकी तरफ से मैं थैंक यू कर रहा हूँ। सवाल करें। हाँ हेलो सर, मेरा सवाल सुभाष सर से है।
जैसे कि हमें पता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब लेजेंडरी सिंगर है, तो आप एज ए डायरेक्टर उन पे म्यूजिकल बायोग्राफी कभी बनाना चाहेंगे क्या? हाँ, आपसे मुझे लगता है कि रफ़ी साहब, मैं आपके लिए मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। रफ़ी साहब ने कोई मसाला दिया ही नहीं है फिल्म बनाने के लिए, इतनी सिंपल लाइफ जी है उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि ऐसे आदमी को जिनका मतलब यहाँ से यहाँ तक की रास्ता हो, यहाँ वहाँ भटके ना हो कभी, क्या बनाएंगे फिल्म में? फिल्में उन पे बनती हैं जिन्होंने कंट्रोवर्सीज बहुत की होती हैं। बायोग्राफी उनकी बनती है जो भटके हुए हों, जिनकी मुसीबतें हों, पहाड़ हों, तूफान हो। वो तो सूफी आदमी थे, खुद तूफानी आदमी हो। वो एक बहुत रब के बंदे थे। लाइफ में तोड़ की हो। इस बारे में जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आपको क्या लगता है? नहीं, सही है, वो फिल्म की बात करे, वो फिल्म बनाने की बात करे, डॉक्यूमेंट्री तो होगी नहीं। ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि दिसंबर में आपको अनाउंसमेंट होने वाला है, रफ़ी साहब की बायोपिक मैं बना रहा हूँ। जी हाँ, जी जी, ये हकीकत है कि दिसंबर इंशाल्लाह प्लानिंग के अपना विद एक्टर ये अपना इट इज गोना बी लाइफ हिस्ट्री, लाइफ स्टोरी अबाउट रफ़ी साहब। गाने तो हों ही होंगे, लेकिन अपना उनकी लाइफ के बारे में ये बायोपिक बन रही है। एंड आई हैव ऑलरेडी, आई मीन नॉट साइन, आई मीन वी हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद उमेश शुक्ला जी, उमेश शुक्ला जी, डायरेक्टर ऑफ ओ माय गॉड 101 नॉट आउट। उनके साथ मेरा अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फुल फ्लेजेड फिल्म, फुल फ्लेजेड फीचर फिल्म, बहुत ब्यूटीफुल। जी जी, ये एक्चुअली गाने सोनू निगम जी की आवाज में होंगे सर, उसमें गाने अभी जो अब हो गया सवाल, अब थोड़ा समय दे दें तो हम कुछ गवा लेंगे आप। हाँ, जी, आखिरी सवाल। कौन? अच्छा ठीक है बेटा, पूछो। हाँ। अरे भैया तो बहुत गजब हो। पहले सर सबको थैंक यू बोलेंगे कि मुझे आज यहाँ खड़ा होने का मौका मिला, और मुझे सवाल नहीं पूछना है, मुझे पहले शर्मिला मैम को बोलना है। सर शर्मिला मैम को ही बोलना है कि आई हेट टीयर्स पुष्पा वाला, और कुछ तो लोग कहेंगे सोनू सर एक बार गाएंगे, और सुभाष सर और आप लोग सबसे सिर्फ आशीर्वाद लेना है। कुछ तो छोड़ देती मेरी नाक, सभी कटवा दी। शाहिद जी, मैं एक सवाल देखिए, करना चाहती हूँ। एक शायर के सामने दूसरे शायर की बात की जाए तो शायर का अपमान है। किशोर कुमार का गाना आप रफ़ी साहब के महफिल में गवाना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि अकेली एक पिक्चर थी रागिनी, जिसमें प्लेबैक कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और फिल्माया जा रहा है किशोर कुमार पे। वो गाना था मन मोरा बावरा, ओपी नैयर का म्यूजिक, और शरारत में भी है। बिल्कुल लास्ट में समाप्त करने से पहले एक गाना, सिर्फ एक गाना जो आपका फेवरेट गाना हो रफ़ी साहब का। भैया ये जूक बॉक्स नहीं है यहाँ पे लोग बैठे हुए कि आप चलाते रहो गाते रहे। नहीं, वो बाद में, बताइए कौन सा गाना है आपको फेवरेट। अच्छा ठीक है, मैं ही गा दूंगा, चलो आप बताओ। एक हंसी शाम को। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए। आगे कुछ। ये मेरे गाना मेरे पापा गाते थे, ये मैंने कभी नहीं गाया, पर मुझे मेरे पापा की आवाज में गाना थोड़ा तो याद है। दही साहब आपका फेवरेट? और इस बार जितेंद्र जी गाएंगे। अरे भाग जाएंगे। जितेंद्र जी को अब सुनाना पड़ेगा आखिर में जाकर। उठने के लिए भी तो कुछ चाहिए। हाँ, क्या बात है। मेरा एक बहुत फेवरेट गाना मैं चाहूंगा सोनू जी गाएं। बड़ी दूर से आए हैं
प्यार का तोहफा लाए। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते। जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते। जोड़ती है तो फिर जोड़े नहीं जाते। ये नाते मन में बसाए हैं, प्यार का तोहफा बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बहुत सुंदर। शर्मिला जी, इशारों इशारों में इशारों इशारों में दिल लेने वाले तुमने देखा कहाँ से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। शाहिद साहब, मेरे दिल को तुम भा गए, इसके बाद आपका वर्जन था। चलिए, हाँ हाँ, आप बताइए फेवरेट। हाँ, वो हम उसी बहाने गवा रहे हैं। अब्बा को याद करते हुए तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हो तुम मुझे यूं। अब मेरा पसंद का कर दो। दिल की आवाज भी सुन। दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, एक नजर देख ले। एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे।
रूठने वाले पहली सी मोहब्बत दे दे, दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, ज़माने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। समाप्त होते होते देखिए फिर शर्मिला जी का ही गाना आ गया, हम साया फिल्म का, ये दिल की आवाज़ भी सुन। मुझे लगता है कि ये शाम ऐसे ही रंगीन और ऐसे ही शानदार बनी रहे और इस पूरे साल ही नहीं, हमेशा शताब्दियों तक मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजे। हम अपने सारे मेहमानों का धन्यवाद करते हैं, अनुराधा जी का, सोनू निगम जी का, सुभाष घई साहब का, आदरणीय शर्मिला टैगोर जी का और शाहिद रफ़ी साहब का। समाप्त करने से पहले जैसा कि आप लोगों ने तय किया था, जो सारा ऑडियंस आपके साथ भी गाएगा और आप भी गाएंगे, और मैं चाहूँगा कि खूब जोरदार तालियों से हम मोहम्मद रफ़ी साहब का एहतराम करें, इफ़ी को धन्यवाद करें। ये गाना आप हम सब के साथ गुनगुनाएं समाप्ति पे। उसके पहले हम शर्मिला जी का फेलिसिटेशन करना चाहते हैं रफ़ी साहब की वो सारे मेमेंटोज के साथ। We are presenting ma'am with the bilingual brochure curated by Shri Yatindra Mishra, the Saregama Karwa featuring the 4 legends, and the My Stamp by Department of Posts. Sorry for gate crashing like this, but you know, जब मुझे पता चला कि ये हो रहा है बिल्कुल नज़दीक में, मुझे तो आना ही था, और आसमान से आया फरिश्ता, so I had to. This gives all the legitimacy to the pura choir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you very much. We would like to thank this esteemed panel for giving us their valuable time and this beautifully melodious session for honoring Shri Mohammad Rafi. Can we please have a big round of applause for our celebrated speakers? आप साथ गाएं ये गाना। सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदी साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिले जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो कर लें एक सामने से, ग्रुप फोटो कर लें। हाँ, ग्रुप फोटो कर दें। हाँ, एक ग्रुप फोटो के लिए आप आगे आ जाएं। शर्मिला जी आगे आ जाएं। एक ग्रुप फोटो। बेस्ट फोटोग्राफर जो भी हैं अपने इफ़ी की तरफ से, एनएफडीसी की तरफ से, प्लीज आ जाएं। आइए। जी मैम, वो भी आ जाएं स्टेज पे। शाहिद साहब की पत्नी श्रीमती फिरदौस जी। यही फ्रेम में नहीं है, सूत्रधार ही भाग गया।